گوگل پر 2020 میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی 10 شخصیات ایسی جن کو بہت زیادہ پاکستانیوں نے سرچ کیا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ماروی سرمد ہیں۔ تو ان کا نام لیتے ہی آپ کے ذہنوں میں کچھ بات چل رہی ہوگی کہ جب خلیل الرحمان قمر کا میرے پاس تم ہو ڈرامہ اور ان کا میرا جسم میری مرضی والا وہ ایک پروگرام چل رہا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ ڈسپیوٹ بن گیا۔ کچھ خلیل الرحمان قمر کی طرف سے نازیبا الفاظ تھے اور ان کی طرف سے تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ برچھار ہو گئی الفاظوں کی، اور یہ ڈسپیوٹ چلتا رہا اور اس پاکستانیوں نے ان کو ماروی سرمد کو سب سے زیادہ سرچ کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے عظمیٰ خان۔ اب عظمیٰ خان کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں ایک اور بات آگئی ہوگی، یہ بھی فیمیل ہیں۔ عظمیٰ خان جو کہ ملک ریاض کے داماد کے سسرال کے گھر پہ چھاپا مار پیٹ اور گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ کر وہاں پہ ان کی بیوی کو ٹارچر کیا گیا، تو ان کو لوگوں نے بہت زیادہ سرچ کیا 2020 میں، بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا۔ اور ساتھ ہی ایک ایشو یہ بھی تھا کہ انہوں نے آفتاب اقبال کے شو میں بھی یعنی جا کر ایک ہلا گلا وہاں پہ بھی ہوا، وہ بھی بہت مطلب ایک وائرل ہوگی بات۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ہے عظمیٰ خان۔ تیسرے نمبر پر ناظرین یہ خاتون نہیں، پاکستانی بھی نہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ امریکہ سے ہے۔ یعنی یہ نومبر کے جو انتخابات ہوئے، امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر جو بائیڈن جو امریکی صدر بنے، تو لوگوں نے پاکستانیوں نے یعنی کہ یہاں پہ پاکستان کی بات ہو رہی تو پاکستانیوں نے سب سے زیادہ سرچ کرنا اس لیے شروع کیا، ان کو دیکھنا شروع کیا جو بائیڈن کو، کہ بیسیکلی ان کی بایو ہے کہ یہ کہاں سے ہیں، ان کا تعلق کیا ہے، اور مطلب لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صدر کون بن رہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دی۔ نمبر 4 پر ناظرین ہیں بہت ہی خوبصورت ماڈل اداکارہ علیزہ شاہ۔ علیزہ شاہ جن کا ڈرامہ عہد وفا، یہاں سے آپ کو بہت سی باتیں یاد آ چکی ہوں گی۔ عہد وفا ان کا ڈرامہ تھا، تو اس ڈرامے کی بنا پر ان کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا، بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، اور ان کے جو دوسرے معاملات تھے کہ وہ ڈرامے کے دوران ہی ان کی جو شادی کے اور ڈیورس کے، تو وہ پاکستانیوں نے اتنا سرچ کیا۔ ایک ینگ ٹیلنٹ ہے عہد وفا میں ایز ایکٹر ہیں، ہیروئن ہیں، تو بہت زیادہ ان کو بھی بہت زیادہ پاکستانیوں نے سرچ کیا۔ 5ویں نمبر پر انٹرنیٹ کی مشہور ماڈل، انٹرنیٹ کی مشہور ٹک ٹاکر، یعنی ٹک ٹاکر سٹار۔ اب ان کو بھی سٹار دیکھیں، ٹک ٹاک کو ایک سٹار کہلائے، اب کیا بنتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ لیکن 5ویں نمبر پر ٹک ٹاک کی جو سٹار ان کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا، اور سرچ کرنے کی وجہ پہلے ان کا نام جان لیں، ان کا نام حریم شاہ۔ اب حریم شاہ کو سرچ کرنے کی وجہ حریم شاہ خود ہے، کبھی کسی پولیٹیشین کے ساتھ، کبھی کسی پولیٹیشین کے ساتھ، کبھی پی ایم ہاؤس میں۔ تو 5ویں نمبر پر حریم شاہ کو پاکستانیوں نے بہت زیادہ سرچ کیا۔ 6 نمبر پر یہ بھی فیمیل ہیں، ٹک ٹاکر سٹار ہیں، اور ان کا نام مناہل خان ہے۔ مناہل ملک بھی کہتے ہیں، مناہل خان بھی کہتے ہیں۔ مناہل ملک جو کہ ان کی بہت سی تصاویر آپ کو یاد ہوگا، بہت سی تصاویر لیک ہوئی، کچھ سکینڈلز ہوئی، غیر مناسب ان کی تصاویر تھیں، پھر پاکستانیوں نے تو بھرمار کر دی، سرچنگ پہ سرچنگ، اتنی سرچنگ ہوئی کہ یہ 7ویں نمبر پر آ گئیں۔ مناہل ملک کو بہت زیادہ سرچ کیا گیا ہے 2020 میں۔ 8ویں نمبر پر فلک شبیر جو کہ گلوکار ہیں، ان کی وجہ شہرت ان کو اتنا سرچ کیا گیا کہ ان کی سائرہ خان سے جو شادی ہوئی، اب وہ جو تال میل تھی ان کی گلوکاری کی نہیں کی وجہ سے، ان کی گلوکاری کی وجہ سے نہیں ہوئی، یعنی گوگل سرچ جو ہوا ان کی گلوکاری کی وجہ سے ان کو سرچ نہیں کیا گیا۔ سائرہ خان کی شادی جب ہوتی ہے ان سے، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے، پاکستانیوں نے تو میں کہتا ہوں کہ اتنا سرچ کیا کہ یہ 8ویں نمبر پر شبیر فلک ایز اے سنگر وہ پہنچ گئے۔ تو یہ ان کا 8واں نمبر ہے پاکستان میں گوگل سرچ کا 2020 کا ریکارڈ۔ 8ویں نمبر پر عاصم اظہر صاحب جو کہ ہانیہ مرزا جن کا تعلق
मतलब कुछ ऐसी चीज़ों से था। इनको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया 2020 में। पाकिस्तानी मीडिया ने इनको भी बहुत सा मतलब वायरल हुई कुछ चीज़ें, कुछ नाजेबा तस्वीर, कुछ स्कैंडल्स हुए, इनको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया 2020 में। नंबर 10 पर पाकिस्तान की हर दिल अजीज़, बल्कि क्रश कह लें पाकिस्तान का लव कह लें, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा 2020 में इनको सर्च किया है। वो थी उर्तुगुल ड्रामा की हीरोइन हबीब सुल्ताना को पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा रेटिंग इनकी गई, जिनको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया 2020 दिसंबर तक। ये दिसंबर का जो माह चल रहा है अभी तक। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये 10 नंबर जो मैंने, यानी 10 नाम नंबर वाइज मैंने लिए हैं, तो इनमें मैं सोच रहा था कि शायद हमारे गुजरे हुए सियासतदानों के नाम आएंगे। शायद जो रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास, उनमें शायद हो सकता है कि हमारे मौलाना बहुत से आएंगे, हमारे ऐसे स्कॉलर्स आएंगे, जैसे बहुत से थे। काजी हुसैन अहमद साहब, वो अल्लाह की रहमत करे, वो फौत हो चुके हैं, अभी मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन मैं समझ रहा था कि कुछ असातिज़ा के नाम आएंगे, टीचर्स के, साइंटिस्ट के, फिजिसिस्ट के। लेकिन यहाँ टिकटॉकर्स के नाम है, यहाँ मनाहल मलक के नाम है, और ऐसे लोगों के बेशतर आपने नाम सुने, देखे। ये 2020 में सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च होने वाले वो नाम, वो बंदे हैं जिनको स्टार्स भी बनाया। और अगर किसी को यहाँ अभी 11वां नंबर या 10वां नंबर, 10वें के बाद 11वां नंबर मिलता, तो शायद वो अलीशा गैंगरेप था जो कि कश्मीर में हुआ, उसको भी बहुत ज़्यादा सर्च किया गया। लिहाजा यहीं से अंदाज़ा लगा लिए कि हम पाकिस्तानी बतौर आवाम, बतौर मुसलमान, हम किन को सर्च करते हैं। जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं ख़ासकर क्रिटिसाइज़ करता हूँ किसी भी चीज़ को, तो फिर बहुत से मुझे अलामे भी मिलते हैं, बहुत सी बातें भी होती हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। 45 सेकंड के लिए कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे गोल्स, ऐसी ट्रिक्स जो कि आपकी ज़िंदगी, आपके गोल्स आपको पता चलेंगे। हम बढ़ते चले जा रहे हैं 221 में, फर्स्ट सेंचुरी में आ चुके हैं, लेकिन हमें अपने गोल्स का नहीं पता। अपने बच्चों को सबसे पहले 3 स्किल्स दें। अच्छा, जहाँ जैसी मैं स्किल्स की बात करता हूँ तो हमारे जहन में एक बात आती है कि शायद वर्कशॉप में डालने की बात हो रही है। तो भाई स्किल्स से मतलब यहाँ ये है कि हार्ड स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स वो हैं जिसमें बिजनेस आता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं। दूसरी स्किल्स जो हैं वो हैं सॉफ्ट स्किल्स, यानी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस उनको बताएंगे, उनको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस होना बताएं कि सॉल्यूशंस क्या हैं। फिर तीसरी स्किल है मिड स्किल्स, कि वो अपने आप को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों के बाद बच्चों के साथ अपना रिलेशन ऐसा कायम कीजिए। मैं कहता हूँ कि हम अक्सर, आपने एक जुमला देखा होगा, हम किसी से पूछते हैं कि ये भी क्या हाल है, जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हम भी, तुम कैसे हो? बस ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। भाई शुक्र का मतलब है कुछ। मतलब जैसे आप एक बच्चे से कहें, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप बच्चे से कह रहे हैं कि तो बहुत अच्छा, 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 तो बच्चे पे भी वो असर नहीं जाएगा और आपकी बात की तासीर भी नहीं जाएगी। इसी तरह शुक्र के भी अंदाज हैं कि हम शुक्र किस तरह करते हैं। जिस तरह बच्चे को एक ही बार कहा जाए, उसको यूँ पकड़ा जाए, प्यार से गले लगाया जाए और कहा जाए कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये मायने है। इसी तरह इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने हौसले से बड़ा होता है। कंजूस आदमी तो वैसे ही मर जाता है। तो अपने बच्चों को और ख़ुद भी सखी बने और उनको सखावत के अंदाज सिखाइए कि सखावत किस तरह की जाती है। बच्चों को डांटें भी, लेकिन उनको इनकरेज ज़्यादा कीजिए। आगे जो दौर जा रहा है, बच्चों के साथ ही आपका मुस्तकबिल है और बच्चों के साथ आप रेलेवेंट है। और बच्चों की परवरिश करती है एक माँ के लिए ज़रूरी है अच्छा खामंद, अच्छे खामंद के लिए ज़रूरी है अच्छा ख़ानदान और अच्छी बेगम। लेकिन इस चीज़ को यहीं से कंटिन्यू करूँगा। पहले वो बातें कर लें जिनको हमने डिस्कस डेली करना है। उनमें बहुत से गोल्स हैं, जैसे कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो अपनी स्किल्स को इतनी एक्सीलेंसी लेके आए। बच्चे को कभी ना कहें कि मुझे 100 ये मार्क्स चाहिए, मुझे O लेवल, A लेवल चाहिए। उसकी एक्सीलेंसी चेक कीजिए कि वो एक्सीलेंट कितना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर खुशी कहीं नहीं बाहर पड़ी, आपके अंदर पड़ी है, उसको बाहर लेके आए। आप ये सोचें आप क्या कर सकते हैं। आप YouTube पे क्या कर सकते हैं, बिजनेस, कुकिंग, सॉफ्टवेयर, बिजनेस,
मोटिवेशन, डेवलपमेंट और इतना कुछ है, पोइट्री, मैं कहता हूँ कि कुकिंग के चैनल, इतना कुछ है अभी करने के लिए कि ख़त्म ही नहीं होने को आता। आगे दौर जो जा रहा है ये बहुत ही फास्ट हो चुका है, इसलिए इस फास्ट दौर के साथ मटीरियलिस्ट होना थोड़ा सा ज़रूरी है। हम दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स में गिरते जा रहे हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि हमने अभी तक वो आदत, मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ, सुजेस्ट कर रहा हूँ सबसे, आज ही छोड़ दें कि जी मेरे दादा ये किया करते थे, अब्बा ने भी ये किया, मैंने भी यही करना है। वो एक बात है ना बनी हुई कि आज सब्जी जब हम खाते हैं तो मुर्गी की खाल है, जो कि पर उसको निकाल ले तो उसके ऊपर एक खाल है, फिर उसके नीचे एक खाल है। तो जो ऊपर वाली खाल है वो सब्जी है। तो जिसने पहली बार बनाई उससे पूछा उस खातून से कि ये तुमने कहाँ से सीखा? उसने कहा जी अपनी वालदा से। उसकी वालदा के पास कहीं टाउन वाउन में गए, उससे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा? उसने कहा जी मैंने अपनी वालदा से। फिर लकीली उसकी नानी जिंदा थी, उससे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा? तो उसकी नानी कहने लगी कि मैंने अपनी वालदा से, जो कि मर चुकी। तो ये इनहेरिटेड चीज़ें जो चलती आ रही हैं, इनको ख़त्म करना होगा। एक नई प्रोडक्ट सामने लेके आनी होगी, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। आप अपने आप के साथ कितना सिंसियर है, आप अपनी वाइफ के साथ कितना सिंसियर है, वाइफ आपकी आपके साथ कितना सिंसियर। ये सिंसियरिटी और अनसिंसियरिटी के चक्कर्स में बहुत से ऐसे मामला है जो डाइवोर्स की तरफ जाते हैं। बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, एक बंदा वो ना शुक्र है, पता नहीं क्यों, शुक्र के मतलब का ही नहीं इल्म इनको। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि शुक्र है अल्लाह दा, शुक्र है अल्लाह दा, शुक्र है अल्लाह दा, शुक्र है अल्लाह दा करिए ना, तो ये शुक्र अल्लाह दा नहीं है। शुक्र अल्लाह का वो है कि आप उसके दिए हुए से, मैं कहता हूँ थोड़ा भी हो, उसमें भी किसी को शामिल कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बांटने से बढ़ती है चीज़, इल्म बांटने से बढ़ता है, रिज़्क बांटने से बढ़ता है। एक बंदे को कह दें जी मैंने 1100 रुपया सदका करना है, मैं कहाँ पे करूँ? तो पहले वो यही सोच में मुब्तला रहेगा, मैं किसी फ़कीर को ढूंढूं, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं। भाई नहीं, सबसे पहले उस बंदे को देखो, 1100 उसी को दे दो जो जिसके पास बिल्कुल नहीं है। उसकी एक दो टाइम की हंडिया तो अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इधर भाजी उधर भाजी, ये वो, मतलब कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, हमारे अंदर से वो स्पिरिट, वो स्पिरिचुअलिटी वो ख़त्म होती जा रही, नापेद होगी। यानी एक बच्चे को आज पूछ ले कि आप जुम्मा जो पढ़ के आए हो, मौलवी साहब ने क्या ख़ताब दिया, तो वो बिल्कुल जैसे आपको देखेगा जैसे पता नहीं क्या पूछ के लिए आपसे, गुनाह कर बैठे हम तो। और उसको ये पूछें कि मतलब कोई मूवी, पीके मूवी लगा लें, सलमान खान की थी या आमिर खान की थी, कि पीके मूवी उसको 25 डायलॉग उसके याद होंगे, लेकिन मौलवी साहब ने क्या कहा उसको कुछ भी याद नहीं होगा। ये अलमिया बन चुका है। ये अलमिया वहाँ भी धनक रहा है कि घर घर में लड़ाइयाँ हैं जी, ये मर्द ठीक नहीं, ये औरत ठीक नहीं, ये मेरी बेइज्जती करती है। हज़रत अबू सुफियान बिन मोहम्मद, उनसे किसी ने, एक बद्दू था, उसने आके पूछा कि मेरी बीवी मेरी बेइज्जती बहुत करती है। आप कुछ देर सर लटका के बैठे रहे, फिर आपने पूछा उससे कि यार तुमने शादी बीवी से अपनी इज्जत करवाने के लिए की थी? तो कहने लगा जी कि, यानी सरापा उसने कह दिया कि जी मैंने इज्जत करवाने के लिए की थी। तो आपने फरमाया कि इज्जत करवाने के लिए अगर शादी की थी तो वो ज़िल्लत में मुब्तला हो जाती है। हम इन चीज़ों को सवाब समझते नहीं, दीन इसमें शामिल ही नहीं करते। तो बिगाड़ क्या होता है, बच्चे अडॉप्ट करते हैं और बच्चे वही करते हैं, जिस तरह मैंने वो मुर्गी की मिसाल दी कि बच्चे फिर वो चलती आ रही, इनहेरिटेड वो चलती आती है। अब टाइम है कि हम बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। हर बंदे का आगाज़ सिफर से होता है और जिग-जैग चलता रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट अगर आ जाएगा, जैसे पल्स चलती है, अगर वो कांस्टेंट हो जाएगी तो डेड हो जाएगा। तो जिग-जैग बहुत ज़रूरी है, चैलेंजेस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चैलेंजेस को फेस कीजिए, कभी भी अपने आप को कमतर न समझें। यू आर द बेस्ट। लिहाजा इसी तरह हम आगे चलकर बताएंगे एक घर कैसे ठीक हो सकता है। बच्चे, उनके लिए टिप्स होंगी, खामद के लिए टिप्स होंगी, फीमेल्स के लिए टिप्स होंगी, मुबाशरत के लिए टिप्स होंगी, इंटरकोर्स के लिए टिप्स होंगी, आपकी डेली बेसिस के जो काम है उनके लिए टिप्स होंगी। यानी ये सारी की सारी 45 सेकंड, जो मैंने पहले कहा कि 45 सेकंड में आपको बहुत सी टिप्स दी जाएंगी, बहुत से गोल्स दिए जाएंगे। व्हाट इज़ राइट टू डू एंड व्हाट इज़ राइट टू डू एट इट्स राइट टाइम, और वो टाइम आपने चूज़ करना है।
آپ 2025 تک یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہر بندے کے پاس ڈیمانڈ ہوگی کہ مجھے وہ بندہ چاہیے جو پارٹ آف دا سلوشنز جانتا ہو۔ تو اپنے آپ کو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو یعنی اتنا ٹائم دیں کہ کسی چیز کی ضرورت دوسری محسوس ہی نہ ہو۔ یعنی بیوی کے شکوے ختم ہو جائیں گے، خامد کے شکوے ختم ہو جائیں گے، اور بچوں کے تو الٹیمیٹ ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم آپ کو بتائیں گے 45 سیکنڈ میں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہ سکتے ہیں، بیوی اپنے خامد کے ساتھ کس طرح رہ سکتی ہے، اور ہم ایک اچھے معاشرے کو کیسے تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی فلیورنگ آئے گی، بہت سی چیزیں آئیں گی، اس میں کاسٹیومز بھی آ سکتے ہیں، اس میں موٹر بائکس بھی آ سکتی ہیں، اس میں واٹر کولر بھی آ سکتا ہے، اس میں سوئی میں دھاگا ڈالنے سے لے کے جہاز بنانے تک تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ آپ فیڈ بیک دیتے رہیے، بہت شکریہ۔